बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुई है। कुछ तस्वीर आई हैं और कुछ तो ऐसी हैं कि जिनको दिखाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की फतह है। जिसको घर में इज्जत ना मिले ना, वो पूरी दुनिया में जो मर्जी करता रहे, तलवे चाटे, जूते चमकाए, उसको वहां भी इज्जत नहीं मिलती। एक फील्ड मार्शल है जो समझता है कि वो बादशाह बन बैठा है, लेकिन उसकी दुनिया में कहीं भी कोई इज्जत नहीं है। दिन को मैंने कुछ डायसेक्ट किया था सिचुएशन को, और मैं हमेशा कहता हूं कि तस्वीरें बोलती नहीं हैं बल्कि चीखती हैं, चिल्लाती हैं और सारी कहानी बयान कर देती हैं। आज आपको गेम चल रही है। पूरी कौम को बेवकूफ और उल्लू का पट्टा समझते हैं ये शरीफ और इनके सारे गुलाम। एक खातून का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है ताकि हम समझ सकें कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। फील्ड मार्शल की एक बार नहीं 2 बार बेइज्जती की गई है, दोनों बार जिल्लत उसका मुकद्दर बनी है, वो भी आपको बताता हूं। लेकिन शहबाज शरीफ कहता है जी कि इसको नोबेल इनाम देना है हमने। एक तरफ कह रहा है ख्वाजा आसिफ इंटरव्यू में कि हमें पता नहीं था। अब हमला तो हो गया ना भाई, उसने कितनी जंगें और शुरू कर दी। अब भी उस पर डटा हुआ शहबाज शरीफ कि हम ट्रंप की मिनिमम जो कर सकते हैं उसे नोबेल इनाम के लिए तो कम अज कम नामजद करें ना। तलवे चाट रहे हैं, लेकिन तलवे चाटने का इनाम क्या मिला है, अब जरा ये भी सुनते जाएं। फील्ड मार्शल पहली बार चंद हफ्ते पहले अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात होती है, उसकी बड़ी धूमें मच जाती हैं और हम आपको बताते हैं कि उसके सामने एक चार्टर ऑफ डिमांड रखा गया है और उसने सब पे हाँ कर दिया कि इमरान खान जेल में, बाकी सब मैं मानूंगा, फिक्र ना करें। लेकिन उसको ट्रंप से मुलाकात के बावजूद जो मीडिया टॉक होती है वो नसीब नहीं होती। ट्रंप ने उसके साथ बैठ के मीडिया के सामने आना अपनी तौहीन समझा था। अब शहबाज शरीफ भी है साथ, लेकिन मीडिया टॉक फिर भी नसीब नहीं हो। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री झूठ बोलकर बेचारा बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत के राजनयिक ने न केवल झूठ का पर्दाफाश किया बल्कि पाकिस्तान को जमकर लताड़ भी लगाई। This assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. This is the very same Pakistan which, at the UN Security Council on 25th April 2025, shielded the resistance front, a Pakistani-sponsored terror outfit, from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Mr. President, a country long steeped in the tradition of deploying and exporting terrorism has no shame in advancing the most ludicrous narratives to that end. Let us recall that it sheltered Osama bin Laden for a decade, even while pretending to partner in the war against terrorism. Its ministers have just recently acknowledged that they have been operating terrorist camps for decades. It should come as no surprise that once again this duplicity continues, this time at the level of its Prime Minister. A picture speaks 1,000 words, and we saw many pictures of terrorists slain in Bahawalpur and Murid Ke terror complexes by Indian forces during Operation Sindoor. When senior Pakistani military and civilian officials publicly glorify and pay homage to such notorious terrorists, can there be any doubt about the proclivities of this regime? The Prime Minister of Pakistan also advanced a bizarre account of the recent conflict with India. The record on this matter is clear. Till 9th May, Pakistan was threatening more attacks on India, but on 10th May, its military pleaded with us directly for a cessation to the fighting. The intervening event was the destruction caused to multiple Pakistani air bases by Indian forces. The pictures of that damage are, of course, publicly accessible. If destroyed runways and burnt-out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. The truth is that, as in the past, Pakistan is responsible for a terrorist attack on innocent civilians in India. We have exercised the right to defend our people against such actions and have brought the organizers and perpetrators to justice. The Pakistani Prime Minister has spoken about wanting peace with India. If he is indeed sincere, the pathway is clear. Pakistan must immediately shut down all terrorist camps
and hand over to us terrorists wanted in India. It is also ironic that a country which wallows in hate, bigotry, and intolerance should preach to this assembly on matters of faith. The political and public discourse of Pakistan reflects its true nature. Clearly, a look by them at the mirror is long overdue. संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री झूठ बोलकर बेचारा बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत के राजनयिक ने न केवल झूठ का पर्दाफाश किया बल्कि पाकिस्तान को जमकर लताड़ भी लगाई। ऑफ लेट क्या वजह बन रही है? इंडिया क्यों इस तरह की हरकत कर रहा है? दुश्मन बुज़दिल है, रात के अंधेरे में आया भाई, वो रिश्ता लेके आ रहा है जो आपको बता के आएगा मैं 4 बजे आऊंगा या सुबह आऊंगा, और वो चूज करेगा। रात के अंधेरे में उसको सूट करता है, बिकॉज दूसरी कौम ज्यादातर सोई होती है। इट्स अ सरप्राइज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। सिवाय ड्यूटी पे होने के आप किसी अस्पताल में रात को 2 बजे चले जाए, सिवाय इमरजेंसी स्टाफ के बाकी डॉक्टर्स नहीं होते। तो ये एक मुरव्वजा एक तरीका है, लेकिन हमारा हर वजीर खड़ा होकर कह रहा है कि दुश्मन के बुज़दिलाना और रात के अंधेरे में आए और चोर रात को आते हैं। तो जो अटैक करने आपको आ रहा है वो भी चोर है, वो आपके घर का बंदा नहीं है। तो इसलिए इन चीजों से आगे होके दूसरी, जैसे जान साहब ने कहा कि मुझे ये बताएं इस गवर्नमेंट ने नेशन बिल्डिंग के लिए क्या किया है? हैव दे प्रिपेयर्ड दिस नेशन फॉर वॉर? कि 15 दिन पहले इन्होंने अपनी तनख्वाहें 1 जनवरी से 140% बढ़ा दी है। आई मीन व्हाट फॉर? कौम को सादगी का दर्श दे, और लेकिन अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में, तो ये नेशन बिल्डिंग का एक हिस्सा है। सही है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुई है। कुछ तस्वीर आई हैं और कुछ तो ऐसी हैं कि जिनको दिखाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की फतह है। जिसको घर में इज्जत ना मिले ना, वो पूरी दुनिया में जो मर्जी करता रहे, तलवे चाटे, जूते चमकाए, उसको वहां भी इज्जत नहीं मिलती। एक फील्ड मार्शल है जो समझता है कि वो बादशाह बन बैठा है, लेकिन उसकी दुनिया में कहीं भी कोई इज्जत नहीं है। जिनको मैंने कुछ डायसेक्ट किया था सिचुएशन को, और मैं हमेशा कहता हूं कि तस्वीरें बोलती नहीं हैं बल्कि चीखती हैं, चिल्लाती हैं और सारी कहानी बयान कर देती हैं। आज आपको गेम चल रही है, पूरी कौम को बेवकूफ और उल्लू का पट्टा समझते हैं ये शरीफ और इनके सारे गुलाम। एक खातून का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है ताकि हम समझ सकें कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। फील्ड मार्शल की एक बार नहीं 2 बार बेइज्जती की गई है, दोनों बार जिल्लत उसका मुकद्दर बनी है, वो भी आपको बताता हूं। लेकिन शहबाज शरीफ कहता है जी कि इसको नोबेल इनाम देना है हमने। एक तरफ कह रहा है ख्वाजा आसिफ इंटरव्यू में कि हमें पता नहीं था। अब हमला तो हो गया ना भाई, उसने कितनी जंगें और शुरू कर दी। अब भी उस पर डटा हुआ शहबाज शरीफ कि हम ट्रंप की मिनिमम जो कर सकते हैं उसे नोबेल इनाम के लिए तो कम अज कम नामजद करें ना। तलवे चाट रहे हैं, लेकिन तलवे चाटने का इनाम क्या मिला है अब जरा ये भी सुनते जाएं। फील्ड मार्शल पहली बार चंद हफ्ते पहले अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात होती है उसकी, बड़ी धूमें मच जाती हैं और हम आपको बताते हैं कि उसके सामने एक चार्टर ऑफ डिमांड रखा गया है और उसने सब पे हाँ कर दिया कि इमरान खान जेल में, बाकी सब मैं मानूंगा, फिक्र ना करें। लेकिन उसको ट्रंप से मुलाकात के बावजूद जो मीडिया टॉक होती है वो नसीब नहीं होती। ट्रंप ने उसके साथ बैठ के मीडिया के सामने आना अपनी तौहीन समझा था। अब शहबाज शरीफ भी है साथ, लेकिन मीडिया टॉक फिर भी नसीब नहीं हो। हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज क्रॉस द स्काईज रिजल्टिंग इन 7 of the Indian jets। पूरी कौम को बेवकूफ और उल्लू का पट्टा समझते हैं ये शरीफ और इनके सारे गुलाम। इसने बोला कि यूएन में 1 जेट तो बनता है इंडिया का एक्स्ट्रा, वो क्या शगुन का एक तो बनता है। देखो 7 इसीलिए बोला, हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ 7 नंबर भी शुभ माना जाता है। Till 9th May, Pakistan was threatening more attacks on India, but on 10th May, its military pleaded with us directly for a cessation to the fighting. अब लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि कभी 5 जहाज गिराते हैं, कभी 6 के निशान बना के दिखाते हैं इनके क्रिकेटर्स, और उसके बाद 7 प्लेन जो है वो गिराने का भी दावा जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने। फील्ड मार्शल की एक बार नहीं 2 बार बेइज्जती की गई है। हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज क्रॉस द स्काईज रिजल्टिंग इन 7 of the Indian jets। पूरी कौम को बेवकूफ और उल्लू का पट्टा समझते हैं ये शरीफ
और इनके सारे गुलाम। इसने बोला कि यूएन में एक जेट तो बनता है इंडिया का एक्स्ट्रा। वो क्या शगुन का एक तो बनता है। अच्छा, देखो 7 इसीलिए बोला, हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ 7 नंबर भी शुभ माना जाता है। Till 9th May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on 10th May, its military pleaded with us directly for a cessation to the fighting. अब लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि कभी 5 जहाज गिराते हैं, कभी 6 के निशान बना के दिखाते हैं इनके क्रिकेटर्स, और उसके बाद 7 प्लेन जो है वो गिराने का भी दावा जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने। फील्ड मार्शल की एक बार नहीं 2 बार बेइज्जती की गई है, दोनों बार जिल्लत उसका मुकद्दर बनी है। If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. उन्होंने कहा कि इंडिया ने हम पे अनप्रोवोक्ड हमला किया, अनप्रोवोक्ड हमला किया। चलो जी, क्या ये शरीफों और उनके नौकर हमें बेवकूफ बनाते हैं, उल्लू का पट्टा समझते हैं साहब को? जो जितना बड़ा देशभक्त है, जितना बड़ा उसके अंदर मोहिबुल वतनी का जज्बा जागेगा, उबाल जागेगा, वो कहेगा 10-0, कोई कहेगा 15-0। और उन्होंने कहा कि ट्रम्प को कहा कि हम सीज फायर के लिए एग्री हुए, जिसको ट्रम्प ने फैसिलिटेट किया। अब इंडिया इसको भी नहीं मानता, मोदी साहब इग्नोर करते हैं। पाकिस्तान इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि भारत की तरफ से जो टेरर कैंप्स पे अटैक करने का दावा किया गया था वो झूठा है या वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। President, this assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. This is the very same Pakistan which, at the UN Security Council on 25th April 2025, shielded the Resistance Front, a Pakistani-sponsored terror outfit, from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Mr. President, a country long steeped in the tradition of deploying and exporting terrorism has no shame in advancing the most ludicrous narratives to that end. Let us recall that it sheltered Osama bin Laden for a decade, even while pretending to partner in the war against terrorism. Its ministers have just recently acknowledged that they have been operating terrorist camps for decades. It should come as no surprise that once again this duplicity continues, this time at the level of its Prime Minister. A picture speaks 1,000 words, and we saw many pictures of terrorists slain in Bahawalpur and Muridke terror complexes by Indian forces during Operation Sindoor. When senior Pakistani military and civilian officials publicly glorify and pay homage to such notorious terrorists, can there be any doubt about the proclivities of this regime? The Prime Minister of Pakistan also advanced a bizarre account of the recent conflict with India. The record on this matter is clear. Till 9th May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on 10th May, its military pleaded with us directly for a cessation to the fighting. The intervening event was the destruction caused to multiple Pakistani air bases by Indian forces. The pictures of that damage are, of course, publicly accessible. If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. The truth is that, as in the past, Pakistan is responsible for a terrorist attack on innocent civilians in India. We have exercised the right to defend our people against such actions and have brought the organizers and perpetrators to justice. The Pakistani Prime Minister has spoken about wanting peace with India. If he is indeed sincere, the pathway is clear. Pakistan must immediately shut down all terrorist camps and hand over to us terrorists wanted in India. It is also ironic that a country which wallows in hate, bigotry, and intolerance should preach to this assembly on matters of faith. The political and public discourse of Pakistan reflects its true nature. Clearly, a look by them at the mirror is long overdue. साथ ही साथ उन्होंने भारत का जिक्र किया। जाहिर है भारत का जिक्र किए बिना तो जो है पूरी तकरीर उनकी कंप्लीट नहीं होती थी, तो उन्होंने जी जिक्र किया भारत का। उन्होंने बताया कि अभी रिसेंटली जो भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था उसके बारे में भी शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि जी हमें बिना बताए और कह लीजिए कि अचानक से भारत ने जो है पाकिस्तान पर अटैक किया और उसके जवाब में
पाकिस्तान ने जो है वो भारत के ऊपर अटैक किया और हमने उनके 7 फाइटर जेट गिरा दिए, ऐसा दावा किया है शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने जी साथ ही तारीफ की फील्ड मार्शल साहब की, पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफ की। और अब लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि कभी 5 जहाज गिराते हैं, कभी 6 के निशान बना के दिखाते हैं इनके क्रिकेटर्स, और उसके बाद 7 प्लेन जो है वो गिराने का भी दावा जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने यूएन में कर दिया। भारत की तरफ से भी पाकिस्तान को रिप्लाई आ चुका है यूएन में। पाकिस्तान के लिए जो है वो एक बार फिर भारत की तरफ से यही कहा गया है कि जी जो कुछ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा, उनकी उस बात को उन्होंने कहा हम रिजेक्ट करते हैं। और जो भारत ने अटैक किया और उसमें जो तबाही हुई पाकिस्तान में, चाहे वो एयर बेसिस हो, चाहे वो दूसरी जगहें हो जिसके ऊपर भारत ने अटैक करने का कहा है, उन्होंने कहा जी उसकी फुटेजेस जो है और उसके प्रूफ जो है वो पूरे इंटरनेट पर और हर जगह आपके सामने हैं। और पाकिस्तान इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि भारत की तरफ से जो टेरर कैंप्स पे अटैक करने का दावा किया गया था वो झूठा है या वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, ऐसा भारत की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन थी उनका कहना है। बहरहाल एक नए लेवल पे ये बात जा चुकी है और मेरा ख्याल है कि अब कहीं ना कहीं संभल के बात करनी चाहिए पाकिस्तान को और देखना चाहिए कि कहाँ पर हमसे गलती हुई है और कहाँ पे हम चीज को सही कर सकते हैं। सिर्फ बजाय इसके कि बार बार कभी हम कहते हैं 6 जहाज गिरा दिए, 5 से शुरू होकर हम 7 तक पहुंच गए, लेकिन हमारी बात का कोई प्रूफ अभी तक हम नहीं दे पाए हैं कि हमने कोई जहाज गिराया है। गिराया होगा, जरूर गिराया होगा। और हमारे कई लोग जो हैं, बल्कि भारत से भी कई लोग कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, लेकिन आप बार इस चीज को अगर रिपीट करेंगे तो दूसरी तरफ आप ये भी चाह रहे हैं कि टर्म्स ठीक हो जाएं, तो ये मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं होगा। और पाकिस्तान को अब इस मामले को जरा समझदारी से, जरा थोड़ी अक्ल लगा के हैंडल करना चाहिए। Mr. President, this assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. This is the very same Pakistan which, at the UN Security Council on 25th April 2025, shielded the Resistance Front, a Pakistani-sponsored terror outfit, from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Mr. President, a country long steeped in the tradition of deploying and exporting terrorism has no shame in advancing the most ludicrous narratives to that end. Let us recall that it sheltered Osama bin Laden for a decade, even while pretending to partner in the war against terrorism. Its ministers have just recently acknowledged that they have been operating terrorist camps for decades. It should come as no surprise that once again this duplicity continues, this time at the level of its Prime Minister. A picture speaks 1,000 words, and we saw many pictures of terrorists slain in Bahawalpur and Muridke terror complexes by Indian forces during Operation Sindoor. When senior Pakistani military and civilian officials publicly glorify and pay homage to such notorious terrorists, can there be any doubt about the proclivities of this regime? The Prime Minister of Pakistan also advanced a bizarre account of the recent conflict with India. The record on this matter is clear. Till 9th May, Pakistan was threatening more attacks on India, but on 10th May, its military pleaded with us directly for a cessation to the fighting. The intervening event was the destruction caused to multiple Pakistani air bases by Indian forces. The pictures of that damage are, of course, publicly accessible. If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. The truth is that, as in the past, Pakistan is responsible for a terrorist attack on innocent civilians in India. We have exercised the right to defend our people against such actions and have brought the organizers and perpetrators to justice. The Pakistani Prime Minister has spoken about wanting peace with India. If he is indeed sincere, the pathway is clear. Pakistan must immediately shut down all terrorist camps and hand over to us terrorists wanted in India. It is also ironic that a country which wallows in hate, bigotry, and intolerance should preach to this assembly on matters of faith.
the political and public discourse of Pakistan reflects its true nature. Clearly, a look by them at the mirror is long overdue. Mr. President, India and Pakistan have long agreed that any outstanding issue between them will be addressed bilaterally. There is no room for any third party in that regard. This is our long-standing national position. Where terrorism is concerned, we are making it clear that there will be no distinction between the terrorists and their sponsors. Both will be held accountable. Nor will we allow terrorism to be practiced under the cover of a nuclear blackmail. India will never bow to such threats. India's message to the world is clear. There must be zero tolerance for terrorism. I thank you, Mr. President. I give the floor to the representative of Guatemala. Señor Presidente, la delegación. President, the delegation of Guatemala. भाईजान अल्लाह माफ करे, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है. पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है. ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाजें आ रही हैं. भाईजान अल्लाह आपने भारत ने पाकिस्तानी पीएम के बयान के बाद यूएन में किस तरह से भांडा फोड़ किया है, धोया है पाकिस्तान को. इसलिए धोया क्योंकि वो यूएन के मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था. ये ऑफ लेट क्या वजह बन रही है? इंडिया क्यों इस तरह की हरकत कर रहा है? दुश्मन बुज़दिल है, रात के अंधेरे में आया. भाई वो रिश्ता लेके आ रहा है जो आपको बता के आएगा मैं 4 बजे आऊंगा या सुबह आऊंगा, और वो चूज करेगा. रात के अंधेरे में उसको सूट करता है, बिकॉज दूसरी कौम ज्यादातर सोई होती है. इट्स अ सरप्राइज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. सिवाय ड्यूटी पे होने के आप किसी अस्पताल में रात को 2 बजे चले जाए, सिवाय इमरजेंसी स्टाफ के बाकी डॉक्टर्स नहीं होते. तो ये एक मुरव्वजा एक तरीका है. लेकिन हमारा हर वजीर खड़ा होकर कह रहा है कि दुश्मन के बुज़दिलाना और रात के अंधेरे में आए और चोर रात को आते हैं. तो जो अटैक करने आपको आ रहा है वो भी चोर है, वो आपके घर का बंदा नहीं है. तो इसलिए इन चीजों से आगे हो गए. दूसरी जनरल साहब ने कहा कि मुझे ये बताएं, इस गवर्नमेंट ने नेशन बिल्डिंग के लिए क्या किया है? हैव दे प्रिपेयर्ड दिस नेशन फॉर वॉर? कि 15 दिन पहले इन्होंने अपनी तनख्वाहें 1 जनवरी से 140% बढ़ा दी है. आई मीन व्हाट फॉर? कौम को सादगी का दर्श दे, और लेकिन अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में. तो ये नेशन बिल्डिंग का एक हिस्सा है. सही है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट. बिल्कुल सही है.